Good morning, students. Today we are going to study our 13th chapter, and the name of our chapter is Sound. In this chapter, we will study various components related to sound, various types of sounds, and we will study about various instruments through which various types of sounds are produced. We will study different types of sound, different terms related to sound, and different things like in which unit sound is measured and how is sound measured. All these things we will study in detail in this chapter. So let's study our chapter. So first one is sound. So basically, first the question arises, what is sound? So generally sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. So basically we can say that sound is a that form of energy uh, through which our ears hear. Okay, means when a sound is generated or produced, a sensation is also produced, and a sensation is also caused, and due to that sensation only we are able to hear different things. Okay, so we can basically say that sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. Okay, and uh, if we need to communicate with the sound, we need three factors. Without these three factors we will not be able to communicate through sounds. Means if we want to communicate with someone else, if two people wants to communicate with each other, then there the three factors act, and with the help of these three factors only we can communicate through sound. Like now I am communicating with you all through the means of sound. Okay, or else you might communicate with your friends, family, parents, etc. All time when you communicate with another person, or when any person communicate with other person through the means of sound, then we need three factors. So let us study about those three factors. What are those three factors? There should be some source which can produce sound. So always in order to communicate through sound, always a source is needed which will produce sound, so that there should be a source of sound which will produce the sound. Like now I am speaking, so what is the source of sound? My mouth, my vocal cords, so because they are producing sound. ठीक. So next is, there should be a medium through which sound waves can travel. For example, air is medium through which sound can be transmitted. Okay, so first of all there should be a source through which a sound is produced. Next, there should be always a medium through which, when my vocal cords will produce sound, then uh, when my vocal cord will produce sound, then uh, they will produce waves. Okay, so the waves produced by my vocal cord need a medium to travel. Means suppose I am interacting with you, I am talking with you. So when my vocal cord will produce sound, then the sound waves produced by my vocal cord needs any medium to travel to the your travel till your ear. Until they will my sound produced by the vocal cord did not get any medium to travel to your ear, you cannot listen what I am saying. Okay, so in order to listen what I am saying, the sound produced by my vocal cords needs a medium to travel. So generally air is also a medium. So whenever we talk with a person, if he is closer to us, he can hear our sound, because the sound produced by our vocal cord gets transmitted through the air, and it reaches to the listener. Okay, next and third one is, there should be a sensor, that is ear, which can identify the sound and decode the meaning of the sound being produced by the source. And after the sound waves get the medium to travel, then uh, there should be a sensor. Means a thing which can uh, detect the sound, which can decode the sound. Okay, and which can identify the sound, that is called sensor. Like in humans we have ear as a sensor, because whenever any sound wave is produced, whenever a sound wave travels through a medium and it reaches through our ear, our ear act as a sensor, and with the ear we can hear sounds. Okay,
So all these are the three factors which we need on producing the or for the communicating through sound. Okay, hope you got it. Now let's move ahead. Production of sound. Now let us study how a sound is produced. So keep in mind one thing, कि whenever a sound is produced, or whenever an object produces sound, only and only mm, when the वाइब्रेशन गेट्स इनटू प्ले. दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि साउंड तभी जनरेट हो सकती है, साउंड तभी प्रोड्यूस हो सकती है तो जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट विल वाइब्रेट देन ओनली इट कैन प्रोड्यूस साउंड. विदाउट वाइब्रेटिंग नो ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस साउंड, वेदर माई वोकल कॉर्ड्स, योर वोकल कॉर्ड्स और समथिंग अदर लाइक डीजे, violin, all musical instrument, all the things which produce sound always vibrate while producing sound. Without vibrating they cannot produce sound, because this is general property of sound, that whenever sound will be produced the vibration will be also produced, and that vibration only travels in the form of waves which we can hear. Okay, so whenever an object vibrates it produces sound. when the objects stop vibrating, और जब object जो है vibrate करना stop कर देगा, the sound also stops. so sound भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप होने, क्योंकि वाइब्रेशन बंद हो गया तो साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एनी मोर. Hence it is concluded that any object that vibrates mechanically produces sound. So we can say that any object which is vibrating will produce sound. Okay, so many things you can see the vibration and you can hear the sounds in your daily life. Okay, so whenever the sound is produced, uh, you can feel the vibration actually. Means if you will sometimes if you will hit the uh, hammer with in a pole or in any metal, then you will feel that when you hit the hammer, the object in which hammer is hit, which is producing sound, starts vibrating. You can if you are you will touch that object, you will feel the vibration. So we can conclude that uh, when an object is vibrated, or when an object vibrates mechanically, then it produces sound. Okay. Next, next is let us see one example. For example, in a big and rigid object, detection of vibration become difficult. Like in a solid iron pillar, it will be difficult to detect vibration. जैसे कि एग्जांपल के लिए जो बड़े या रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मीन्स जो कठोर और सख्त ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. जैसे कि एक सॉलिड आयरन पेल, क्योंकि वो पूरा ठोस है तो वो उसकी वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना, देख पाना मुश्किल होता है. सिमिलरली इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट वाइब्रेशन इन वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. उसी प्रकार जो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है उन पे भी डिटेक्ट साउंड को, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है. ठीक है. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विच वी विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर. और ये सारी चीजें कि हम वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि हाउ दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है. ठीक है. इफ लार्जर द एम्पलीट्यूड वी कैन स्टडी. इफ एम्पलीट्यूड विल बी we about amplitude, what is amplitude, we are going to discuss in detail in our in our next topic. In this chapter only we will discuss later on. Okay, so the thing which you have to keep in your mind is that always remember key detection of vibrating object is depends upon the amplitude. Okay, now let us move further. Hence when an object vibrate it pushes the air near its surface. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो उसके आसपास की जो एयर है सरफेस की, उस एयर को वो पुश करती है. एंड रेयर फ्रैक्शंस द रीजन वेयर एयर बिकम लेस, सॉरी, देयर बाय प्रोड्यूसिंग कंप्रेशन. और उससे क्या होता है, जब एयर सर जब कोई भी जो साउंड जो ऑब्जेक्ट है वो जो वाइब्रेट करती है तो अपने आसपास की एयर को दूर कर देती है. ठीक है, पुश करती है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, कंप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. एंड रेयर फ्रैक्शंस द रीजन वेयर एयर बिकम्स लेस डेंस. और जहाँ पे
एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे एयर की डेंसिटी लेस होती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है वो हमेशा कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और इसी से फिर क्या बनते हैं, वेव्स बनते हैं। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन लाइक इस दिस टाइप से वेव्स बनती हैं। फिर साउंड जो हमारी ऐसे ऐसे वेव्स में क्या करती है, ट्रेवल करती है फर्दर मीडियम में आगे से। ओके और व्हेन दिस वेव रीचेस द एयर, और जब यही वेव जो ट्रेवल जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के कारण बनी, जब यही वेव क्या होती है हमारे कानों तक पहुंचती है तो कानों में हमारे ईयर ड्रम को प्रेस करती है और हमारे ईयर ड्रम क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं और तब हम हमारे ईयर उस साउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं, उस साउंड को सेंस कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन हियर द साउंड, हाउ अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ओके नाउ ईच साइकिल ऑफ अ साउंड वेव इंक्लूड्स वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन। साउंड वेव का जो ईच साइकिल है, दिस दिस वन इज नोन एज ईच साइकिल, उल्टा एस, इसमें एक कंप्रेशन भी होता है, एक रेयरफेक्शन मस्ट होता है। वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन मिलके क्या बनाते हैं, साउंड्स वन वेव बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू इन द फिगर लाइक दिस इज वन वेव। ओके, this is known as rear fraction, this is what rear fraction. Okay, and this is compression downward, this is known as compression. Okay, so this whole thing makes a wave. Okay, also the energy required produce sound waves is provided by some outside sources also। जो साउंड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए है वो किसी आउटर सोर्सेज से दी जाती है। जैसे मान लो कि हमें लोहे से साउंड निकलानी है तो हमें उसको किसी दूसरी चीज़ से मारना पड़ेगा, हैमर से। जैसे मान लो हमारी स्कूल की बेल होती है, जब वो रिंग करती है तो तभी साउंड वेव प्रोड्यूस करती है जब हम उसको हैमर से रिंग करते हैं। ठीक है, हैमर से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द फैक्ट फिनोमेना अबाउट द साउंड। नाउ लेट अस मूव अहेड। Some more examples of sound. Let us study various examples of sounds. First, the sound of musical instrument like ektara, sitar, guitar and violin is produced by the vibration of its skin. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि एक तारा हो गया, सितार, गिटार, वायलिन, इन सब की जो साउंड है उनकी स्किन को, जो मेम्ब्रेन उनसे टाइटली टाइट रहती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, उस मेम्ब्रेन को खींच करके उस मेम्ब्रेन में जब हम स्ट्रक करते हैं तभी साउंड क्या होती है, साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और हम उनको सुन पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट एंड ट्रम्पेट प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग द एयर कॉलम इनसाइड देम, उसी प्रकार जो ट्रम्पेट वगैरह है, फ्लूट है, बांसुरी वगैरह, इनमें जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं तो इनमें जो होल्स होते हैं उनके अंदर जब जो एयर है वो जो जो उनके क्या बोलते हैं एयर कॉलम है इनसाइड, उनके द्वारा जब वाइब्रेशन होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, द बजिंग साउंड ऑफ अ बी और अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स। जो मच्छर हैं, मधुमक्खियां वगैरह हैं, उनकी जो बजिंग साउंड है, मच्छर कान के पास आता है तो भिन भिन करता है ना, सो वो किसके कारण है कि वो उतनी तेजी से अपने पंखों को वाइब्रेट करता है और उसी वाइब्रेशन के कारण वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी वो हमेशा वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब मच्छर तेजी तेजी से वाइब्रेशन करता है अपने पंखों को, सो वी कैन व्हेन द वाइब्रेशन are produced, we can then the sound is generated and we can hear the sound of the buzzing mosquito or bee, which we called as a buzzing sound. Next is the sound of a school bell is produced by the vibration of an iron or brass plate when it is hit by hammer। जो हमारी स्कूल बेल है उसको भी, उसकी भी साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब हम उसको किसी आयरन या ब्रास प्लेट से, आयरन या ब्रास प्लेट को हैमर से हिट करते हैं तभी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज हमारी जो वॉइस है, वो साउंड, हमारी वॉइस भी तो क्या है, मतलब क्या वाइब्रेट करता है कि हमारी साउंड निकलती है, जो हमारे ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये चीज ये चीज दिख रही है। जब भी कभी आप बोलें यहाँ पे अपने गले में टच करें तो आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यही जब हमारे लंग से जो एयर आती है उनके कारण जब ये वाइब्रेट करते हैं तभी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ रेडियो और टेलीविजन की जो साउंड है वो, जो उनमें एक स्पीकर का थिन डायाफ्राम होता है, उसके कारण ही
साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उसके बाद जो जल तरंग है वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है कि एक चाइना बॉल में वाटर रखा होता है और जब उस चाइना बॉल के किनारे में हम 2-3 स्टिक से स्ट्रक करते हैं तभी उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है जल तरंग में। सो ऑल दीज आर द different sound producing instruments which produce sounds on vibrating. Okay, now sound produced by humans. Let us study about the sound produced by human, how human produce sound and how it is heard by someone or listener. Humans are the only creature who can make different kinds of sounds. हम एकमात्र ऐसे प्राणी हैं, we humans, जो अलग अलग तरह की साउंड निकाल सकते हैं, ठीक। जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, सिंगर्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओके, तो जो ह्यूमंस की जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जो हमारे ये वोकल कॉर्ड्स हैं जब ये वाइब्रेट करते हैं तभी हम साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। जब हम गाना गा रहे होते हैं तो यहाँ हमारा वॉइस बॉक्स होता है इसी वोकल कॉर्ड में, उसी से, जिसको हम लार्निक्स कहते हैं। हमारे वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, लार्निक्स कहते हैं। इस बात को, इसका नाम याद रखिएगा। जो हमारे यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस करता है वोकल कॉर्ड में वॉइस बॉक्स होता है, उसको हम लार्निक्स कहते हैं, ठीक। वहीं से हम क्या कर पाते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। और लार्निक्स कहाँ सिचुएटेड होता है, जो हमारा विंड पाइप है उसके जस्ट ऊपर और नेक के यहाँ पे नीचे, नेक का जो अपर एंड है, ऊपरी एंड है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा, ये जो दिख रहा है उभरा हुआ, आप गले को छुएंगे तो दिखेगा, दिस इज नोन एज लार्निक्स। इसी से हम क्या कर पाते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं, ओके। और उसके अलावा हमारे वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इस तरह से कि उनके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा नैरो स्लिट होता है, थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, जिससे एयर पास होती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच, जब वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच होते हैं तो वो पतले हो जाते हैं, और व्हेन दे आर लूज दे बिकम थिक, जब वो लूज होते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के, इससे फिर जब ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड क्या होती है, जनरेट होती है। लाइक अभी ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वाइल स्पीकिंग इफ यू विल टच हियर यू कैन फील द वाइब्रेशन। जब ये वाइब्रेट करते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, एयर फ्रॉम द लंग्स दैट इज फोर्स थ्रू द स्लिट मेक्स द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जो हमारे अंग से, लंग्स से एयर प्रोड्यूस होती है, तो वो जब हमारे स्लिट से पास होती है वोकल कॉर्ड से, तो इससे हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और फिर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ओके। नाउ the quality of sound produced by vocal cord depends on the length of the cords as well as how tightly or loosely they are stressed. Okay, so साउंड की क्वालिटी जो है, कितनी किस क्वालिटी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये डिपेंड करती है कि ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं कितने टाइटली या लूजली स्ट्रेच हैं। यदि लूजली स्ट्रेच है तो साउंड हैवी होगी, टाइटली स्ट्रेच है तो साउंड उसी प्रकार से, इस पे डिपेंड करती है कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं कितने टाइटली स्ट्रेच हैं, कितने लाइटली स्ट्रेच हैं, ओके। और वोकल कॉर्ड्स की स्ट्रेचिंग किससे कंट्रोल की जाती है, जो वोकल कॉर्ड्स से जो मसल्स अटैच रहती हैं, ठीक है, वो वोकल कॉर्ड्स की क्या करती हैं, उनको वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट को, वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने को कंट्रोल करते हैं, ओके। द डिफरेंस इन द वॉइस ऑफ men एंड वुमेन इज ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और जो एक आदमी और एक औरत की वॉइसेस में जो, तो एक पुरुष और एक स्त्री की जो साउंड है उसमें जो अंतर होता है उसके कारण से, क्योंकि उनका जो वोकल कोड होता है वो डिफरेंट साइज का होता है। जो मेंस का वोकल कोड है पुरुषों का वो 20 mm का होता है, और जो लेडीज का वोकल कोड होता है वो 15 mm का होता है। इसलिए आदमियों की आवाज़ थोड़ा सा भारी होती है और औरतों की आवाज़ थोड़ा सा पतली होती है, ओके। और ऐसे व्यक्ति जिनका वोकल कॉर्ड्स सेम भी होता है या सेम साइज का भी होता है, ठीक है, तो भी उसकी साउंड अलग अलग होती है, क्योंकि वो उसका वोकल कॉर्ड कितना थिन है, कितना टाइटली फिक्स्ड है, कितना लूजली फिक्स्ड है, इन सब चीज़ों पे, ठीक है, हमारी जो साउंड की प्रोडक्शन है ये डिपेंड करती है, ओके। और इसके अलावा वोकल कॉर्ड्स के अलावा हमारी जो टंग है, चीक्स है, लिप्स है, टीथ हैं, ये भी हमारे साउंड को प्रोड्यूस करने में, डिफरेंट वेरिएशंस देने में सहायता करते हैं। सो ऑल दिस आर द थिंग्स which we have learned which helps in producing the sound in a human body, okay। So now
let us study speed of sound in various materials or mediums. What is the speed of sound? In different mediums, sound travel with a different speed. So here is the table where the speed of sound is given uh, in different medium. So one side material or medium is given, and one side speed of sound is given. So in a dry air at 0 degree Celsius, the sound travel at the speed of 332 meter per second. Okay, and in a dry air at 20 degree temperature, the sound travel at the speed of 344 meter per second. And at hydrogen, when the medium is hydrogen at 0 degree Celsius, the sound travel at the speed of 1284 meter per second. Sorry, 1284 meter per second or 1284 meter per second. Water which is distilled at 20 degree Celsius, in water it travel at the speed of 1498 meter per second. Likewise in sea water 1531, blood at 37 degree Celsius 1570 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में इतने मीटर जाती है. कॉपर 3750 मीटर पर सेकेंड. लाइक एल्यूमिनियम एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 5100 मीटर पर सेकेंड. आयरन और स्टील एट 20 डिग्री सेल्सियस 5130 मीटर पर सेकेंड. और इन ग्लास 5170 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द टेबल वी हैव स्टडीड कि द स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड in different mediums. Okay, now let us study propagation of sound. What does we mean? Propagation means travel. Okay, so how does the sound travel? So as we have already studied कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए. स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के पढ़ा है. सो विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल. इसलिए या तो वो मीडियम गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वी नीड अ मीडियम. इट इज मस्ट. इसलिए वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है. अब जैसे मान लो मून वगैरह में आप जाओगे, स्पेस में जाओगे, तो वहां पे एयर नहीं होती. ठीक, कोई मीडियम नहीं होता. इसलिए वहां पे आप यदि फुल साउंड में डीजे बजाओगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए. तो मीडियम मिलेगा नहीं तो साउंड वेव ट्रेवल करेंगे ही नहीं. तो इसलिए मून में या ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, ओके, तो वहां पे साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती. Now, propagation of sound through air. Let us study propagation of sound through air. Air is also medium. So, जैसे कि जो हवा में साउंड का प्रोपोगेशन है वो हम जैसे एक बैलून के एक्सपेंशन से है उस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं तो हवा क्या होती है, चारों तरफ फूल जाती है. जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो क्या ऐसा होता है क्या कि बैलून एक साइड से फूलता है, एक साइड से नहीं फूलता है? ऐसा नहीं होता ना. बैलून जो होता है चारों तरफ से फूलता है. तो उसी प्रकार जो साउंड वेव्स हैं वो भी जब प्रोड्यूस होती हैं तो हवा में चारों तरफ फैल जाती हैं. ठीक है. और जब हवा में चारों तरफ फैल जाती हैं क्योंकि हवा में उनको मीडियम मिल गया, और ऐसी उसी प्रकार से वो वाइब्रेशन बनाने लगती हैं. और जैसे साउंड जनरेट होती है तो वो एयर की लेयर में जनरेट कर लेती है इमीडिएटली, और उसके अराउंड क्या होने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है. ठीक है. और फिर यही जो वाइब्रेटिंग लेयर ऑफ एयर है, ठीक है, अगले वाइब्रेशन में जाती है. ठीक. और इसी तरह से नेक्स्ट अगले अगले से जाते हुए ये आगे बढ़ते रहती हैं, फॉरवर्ड मूव करते रहती हैं. ठीक है. और इस तरह से साउंड आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और फिर हमें वो सुनाई देती है. ओके, सो दिस इज हाउ द साउंड ट्रेवल्स इन द एयर. नाउ लेट अस स्टडी प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू वाटर. ठीक है. तो एयर से ज़्यादा साउंड प्रॉपर, जितना ज़्यादा जो चीज़ डेंसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक, जो जो जितनी ज़्यादा डेंस होगी साउंड उसमें उतनी तेज़ी से ही ट्रेवल करेगी. ठीक है. तो एयर की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो एयर की अपेक्षाकृत वाटर में साउंड थोड़ा सा तेज़ी से ट्रेवल करती है. ठीक है. तो जैसे कि डॉल्फिन्स वगैरह हैं, वेल्स वगैरह हैं, वो लार्ज डिस्टेंस में भी कम्युनिकेट करने के लिए इसी वाटर मीडियम का यूज़ करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी कम्युनिकेट कर पाते हैं. ओके. नाउ नाउ लेट अस स्टडी प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड. तो सबसे फास्टेस्ट प्रोपगेशन होता है साउंड का सॉलिड्स में. ठीक है. कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि जब ट्रेन आती है, ठीक है, जब ट्रेन आती है तो वो कई किलोमीटर पीछे भी होती है, तब भी हम यदि कान लगाएं जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें, तो हम समझ सकते हैं कि ट्रेन आ रही है. क्योंकि जो ट्रेन के पहिए जब ट्रैक में चल रहे होते हैं तो उनके कारण जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, तो सबसे तेजी से
साउंड वेव जो है सॉलिड में प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम सेवरल किलोमीटर पहले भी, ट्रेन के आने से पहले ही हमें पता लग जाता है कि ट्रैक्स में ट्रेन आ रही है। ठीक है। और जो एक स्टील में साउंड की स्पीड है, साउंड के ट्रेवल करने की स्पीड है, वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है। तो बहुत तेजी से साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड्स में और सबसे फास्टेस्ट करती है। मैंने बताया ना, जितना डेंस मीडियम होगा, जितना सॉलिड मीडियम होगा, उतना ज़्यादा उतनी तेज साउंड ट्रेवल होगी। ओके, दिस इज हाउ द साउंड ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम्स, इन एयर, इन वाटर, इन सॉलिड। नेक्स्ट इज हाउ डू वी हियर साउंड, लेट अस स्टडी। अब हम साउंड सुनते कैसे हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ अवर ईयर। सो as you all know, we can hear sound by when our ear sense that sound. When our ear feels the sensation of sound, then only we can hear the sound. Without sensation we cannot hear the sound. Okay, so let us study about our ear. uh, so we will study now different parts of our ear which plays role in detection of sound, in detecting sensation of sound, and thus converting it into as a hearing. So our ears are made up of three distinct parts. Our ear has three parts which are, जो जो ईयर का जो ये आउटर पार्ट है, ये सबसे जो बाहरी निकला रहता है, ये क्या कहलाता है? आउटर ईयर कहलाता है। ठीक है, जो हमें बाहर से दिखता है वो आउटर ईयर कहलाता है। ठीक, इसमें एक ब्रॉड फैनल, जैसे कि एक फैनल टाइप की जो अंदर की तरफ बिल्कुल फनल टाइप का एक पार्ट होता है जिसको हम पिन्ना कहते हैं, जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज होता है जिसको हम ईयर कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये जो फनल है अंदर हमारे जहाँ से छेद होगा ना, कान में होल होगा, ये फनल कहलाता है, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, जिसको हम ईयर कैनाल कहते हैं। और फिर ईयर कैनाल जहाँ ये खत्म होता है, ईयर कैनाल कान के अंदर, तो वहाँ पे एक पतली सी क्लास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, और इस ईयर ड्रम को हम टाइपैनम भी कहते हैं, ट्राइपेनम भी कहते हैं ईयर ड्रम को। और फिर जब जो हमारे आउटर ईयर के द्वारा साउंड वेव कलेक्ट की जाती हैं, तो आउटर ईयर से फनल के माध्यम से, जो हमारा ईयर कैनाल कहलाता है, उसके माध्यम से साउंड वेव्स अंदर जाती हैं कान में, और वो फिर ईयर ड्रम में स्ट्राइक होती हैं। ठीक है, जब ईयर ड्रम में वो वेव्स स्ट्राइक होती हैं तो ईयर ड्रम्स क्या करता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और उसी ईयर ड्रम के वाइब्रेटिंग से ही जो मिडिल ईयर बोन्स हैं, या जिनको हम ऑसिल्स कहते हैं, क्या कहती हैं, वो एम्पलीफाई करना स्टार्ट कर देती हैं वाइब्रेशंस को। ठीक है, और उनको फिर ईयर के थर्ड पार्ट कोचिला में भेजती हैं, जो कि इनर ईयर का हमारे पार्ट है। ठीक है, फिर कोचिला ट्रांसपोर्ट द वाइब्रेशन इनटू नर्वस इंपल्सेस एंड ट्रांसमिट देम टू द ब्रेन। और उसके बाद कोचिला क्या करता है? उन वाइब्रेशंस को नर्वस इंपल्सेस के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और उस नर्वस इंपल्सेस को ब्रेन के पास ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, और फिर ब्रेन उस साउंड को डिटेक्ट कर लेता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं, और फिर हम साउंड को हियर कर पाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कि हम कैसे साउंड को हियर करते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड। सो केवल ऐसा नहीं, कान की सहायता से बस हम सुनते हैं। जो कान के तीन पार्ट हैं, पहला जो ईयर कैनाल है, वहाँ पे साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं। उसके बाद जब साउंड वेव्स जाती हैं तो अंदर ईयर कैनाल के सबसे लास्ट पार्ट में एक पतली सी झिल्ली होती है, एक पतली सी थिन कवरिंग होती है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। वहाँ पे जब वो साउंड वेव टकराती है तो ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करने लगता है, एम्पलीफाई करने लगता है। फिर वही वाइब्रेटिंग एम्पलीफाइंग वेव्स कलेक्ट की जाती हैं जो हमारी ईयर का अंदरूनी पार्ट है, जिसको हम कॉचिला कहते हैं, कॉकिला कहते हैं। अब वो उसके बाद कॉकिला का काम क्या है कि उन्हीं एम्पलीफाइंग वाइब्रेटिंग वेव्स को वो टर्न करता है नर्वस इम्पल्सेस में, और उनको फिर ब्रेन के पास भेजता है, और ब्रेन के पास जाने के बाद ही हम वो साउंड को हियर कर पाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन हियर साउंड। ओके, नाउ सो नाउ सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वाइब्रेशंस। सो तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो साउंड है वो हमेशा वाइब्रेशंस के जो वाइब्रेशंस के थ्रू ही प्रोपोगेट होती है। ओके, जो सोर्स, जो जैसे मान लो वोकल कॉर्ड्स है,
तो यहाँ से जब ये वोकल कोर्ड वाइब्रेट करेंगे तो जब वाइब्रेशन के बाद इनके इनके द्वारा जब वेव प्रोड्यूस की जाएगी तभी साउंड आगे ट्रैवल करती है, और जब भी साउंड आगे ट्रैवल करती है तो जो सोर्स है उससे दूर जाते जाती है ना, तभी तो साउंड ट्रैवलिंग कहलाती है। ठीक, तो जैसे सोर्स हमारे यहाँ क्या है, माउथ है, तो हमारे माउथ से साउंड वेव क्या होते रहती है, आगे मूव करते रहती है। माउथ हमारा सोर्स है, सोर्स से दूर जाते रहती है। और एक वाइब्रेशन को बहुत सारे पैरामीटर्स में कैरेक्टराइज किया जाता है, लाइक एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नाउ let us study about these parameters. Okay, like vibration, what is amplitude, what is frequency, what is time period, all these things let us study. So generally, what is amplitude? So the maximum displacement of a vibrating body from its mean position on either side is called its amplitude. तो जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके द्वारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब, ठीक है, जैसे ये है, मान लो इधर से साउंड, सॉरी इधर देख तो मैं फिगर बना रहा, आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ मान लो ये सोर्स है हमारा, यहाँ पे मेरा आप पॉइंटर दिख रहा है, मान लो ये सोर्स है, तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसका, वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड वेव का, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे मान लो साउंड यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल की, तो जब एक एक ये क्या बन गया, इस टाइप से एक वेव बन गई है, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ओके, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इस एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड से ही रिलेटेड है फ्रिक्वेंसी। जितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड होंगे, जितने बड़े एम्पलीट्यूड होंगे, उतनी फ्रिक्वेंसी उतनी कम होगी, साउंड उतनी ही ज़्यादा लाउड होगी। ठीक है, जितने एम्पलीट्यूड ये कम होंगे, ठीक है, मीन्स जैसे ये बिल्कुल छोटे छोटे होंगे जब एम्पलीट्यूड, तो साउंड वेव क्या होगी, उतनी ही उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा होगी, लाउडनेस उतनी ही कम होगी। सो दिस इज द फैक्टर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द एम्पलीट्यूड। Now time period. What is the time period? So the time taken by the vibrating body for one complete vibration. ये one complete vibration. This is our one complete vibration. ठीक, ये पूरा हमारा ये क्या है, वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो इस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा बॉडी के द्वारा, ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो मतलब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, दिस वन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। ओके, और इसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं एंड टी से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ frequencies. What is frequency? So frequency is the number of vibration made by the vibrating body in 1 second. ठीक है, एक सेकेंड में एक कोई एक बॉडी कितने वाइब्रेशन करती है, यही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्ज में मेजर की जाती है। ठीक है, वाइब्रेट, और जब कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकेंड में केवल एक बार वाइब्रेट करती है तो हम कहते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है। ठीक है, एक सेकेंड में 2 बार करती है तो 2 हर्ट्ज है, एक सेकेंड में 3 बार वाइब्रेट करती है तो 3 हर्ट्ज। इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जनरली क्या है कि एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन किए गए। सो जनरली we can give it we can formalize it, and frequency is equal to 1 upon time period. This is the formula to calculate the frequency कि 1 सेकेंड में कितने एक 1 upon टाइम पीरियड कितने टाइम लगा एक वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने में, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ओके, so these are the three term: amplitude, frequency and time period, which we have learned about sound. Now characteristics of sound. Let us study various characteristics of sound. So basically sound has three main characteristics. Okay, how many characteristics does the sound have? Three. Let us study about that. First one is loudness. So what is loudness? So loudness is the phenomena which depends upon the amplitude of vibrations. Okay, so the loudness sound of the sound depends upon the amplitude of vibration which produce the sound. Okay,
जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउडर साउंड होगी। जी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड उतनी ही ज़्यादा लाउड होगी, तेज होगी। ठीक है, जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स लाउडनेस इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा साउंड लाउड होगी, जितनी कम एम्पलीट्यूड होगी साउंड में उतनी साउंड कम लाउड होगी। ठीक है, दस लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर का साइन है। दिस इज द हाउ वी रिप्रेजेंट द लाउडनेस, the relation between loudness and amplitude. Okay, loudness is directly proportional to amplitude square. Now, however, loudness is defined as degree of sensation of sound produced in the air. जो loudness है वो कितने डिग्री सेंसेशन हुआ, कितने हमारा जो ईयर है उसके द्वारा कितना साउंड प्रोड्यूस किया गया, हमारे द्वारा ईयर के द्वारा कितना साउंड सेंस किया गया, उसी पे लाउडनेस डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमारा कान नहीं सुन पा रहा है तो इट इज नथिंग, हमारे लिए वो लाउड नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड। अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट आफ्टर इट रीच द सोर्स एंड इट्स एम्पलीट्यूड बिकम लेस एंड लेस। और जैसे ही साउंड वेव जब स्प्रेड होती है, कहने का मतलब ये था, अब मान लो डीजे कहीं 10 किलोमीटर दूर बज रहा है तो वो हमें नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जो सोर्स है डीजे वो वहां से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसी साउंड आगे ट्रेवल करते जाएगी तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा घटते चला जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड घटते चला जाएगा तो लाउडनेस भी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए दूर की साउंड हमें नहीं सुनाई देते हैं, क्योंकि ऑन मूविंग फर्दर, ऑन मूविंग अहेड, जब भी जो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड है वो हमेशा लेस होते जाता है। दैट इज वाई फार जो दूर आवाज होती है वो हमें सुनाई नहीं देती हैं। ओके, साउंड को हम डेसिबल डीबी डिनोट करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल, साउंड की जो लाउडनेस है उसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं। ये एक यूनिट है, ठीक, जिसमें हम साउंड को मेजर करते हैं। फिर द ग्रेटर ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे साउंड को प्रोड्यूस करने में, वाइब्रेट साउंड को वाइब्रेट करने, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने में, उतनी ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी। जैसे जोर से चिल्लाते हैं तो एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, तो हम कितनी जो जब जोर चिल्लाते हैं तो गले पे उतना ही ज्यादा जोर लगाते हैं, है ना, तभी हम उतनी जोर से क्या कर पाते हैं, चिल्ला पाते हैं। तो जो वाइब्रेशन जितने ज़्यादा होंगे तो एम्पलीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने में, एम्पलीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा होगा। नाउ पिच, लेट अस डिस्कस अबाउट द पिच। तो पिच या इसको हम श्रिलनेस भी कहते हैं, ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाई पिच्ड और श्रिल साउंड्स सच एज दोज ऑफ अ व्हिसल और स्रीचिंग ब्रेक हैव हाई फ्रीक्वेंसीज, while low pitched sounds such as the sound of a drum or the roar of a tiger have low frequencies। तो ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, तो जब जब फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो साउंड बहुत ज़्यादा पिची होती है, हाई पिच्ड साउंड कहते हैं उसको। जब फ्रिक्वेंसी लो होती है, जैसे कि टाइगर की आवाज़, ठीक है, या ड्रम की साउंड, ठीक है, तो क्या होती है कि वो साउंड ज़्यादा हाई पिच नहीं, लो पिच्ड साउंड कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ड्रम में 1 सेकेंड में बहुत कम वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, कम होगी। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है ड्रम्स को, या जो शेर वगैरह की आवाज़ है, दहाड़ है, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी कम होगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो साउंड लो पिच्ड होगी, और जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है जैसे विशल वगैरह है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये हाईली पिच्ड साउंड है। ठीक है, दिस इज द साउंड। तो जो हाई पिच साउंड है उनको हम ट्रेबल कहते हैं, और जो लो पिच साउंड है उनको हम बास कहते हैं। ठीक है, और जनरली हमारी डेली लाइफ में जो वुमेन्स या चाइल्ड की आवाज़ होती है उनकी हाई पिच होती है, ठीक, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ in the musical octave
जो म्यूजिकल ऑक्टेव होता है, जैसे कि जो 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निशा, ये भी है जो डिफरेंट म्यूजिकल स्केल हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन म्यूजिक में। जैसे और प्रत्येक जो नोट है, सा से हाई नोट रे है, रे से हाई नोट गा है, उसी प्रकार सबसे जो हाईएस्ट नोट है वो सा है। ठीक है, इस तरह से। ओके। However, pitch is different from frequency. हालांकि जो pitch है वो frequency से अलग होती है। As frequency is the number of vibration produced per second by a source of sound. frequency क्या है कि एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए गए सोर्स के द्वारा, जो साउंड का सोर्स है उसके द्वारा। ठीक, और पिच क्या है कि कितने फ्रीक्वेंसी, कितने वाइब्रेशंस लिसनर द्वारा परसीव किए गए। अब ऐसा थोड़ी जितने सोर्स ने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए उतने हम सब सुन लें, नहीं, जितने हमने अ, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड जो पिच है वो दोनों अलग अलग हैं। फ्रीक्वेंसी की सोर्स, जो साउंड की सोर्स है, उसने कितने वाइब्रेशन पर सेकेंड में प्रोड्यूस किए, और पिच क्या है कि जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसने कितने सुन पाए, वो है पिच। पिच कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पिच लिसनर के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक, बताया जाता है, देखा जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड के जो सोर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। Now, let us study difference between loudness and pitch. So, loudness depend upon amplitude of vibration of the vibrating body. जो loudness है वो जो vibrating body है उसके amplitude पे डिपेंड करता है। ठीक, लाउडनेस जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड लाउड होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतनी ही स्लो होगी, लाउड नहीं होगी। और जो पिच है वो क्या है, जो फ्रीक्वेंसी लिसनर ने परसीव की, ठीक, वो पिच है। नाउ लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द एयर। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है कि जितनी एनर्जी ईयर को मिली उसी के अकॉर्डिंग लाउडनेस होगी। और पिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड बाय देयर। और पिच जो है कि एक ईयर ने कितनी एनर्जी रिसीव की उस पर डिपेंड नहीं करता। लाउडनेस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जो लाउडनेस है किसी भी साउंड की, वो उसके फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन पिच फ्रीक्वेंसी पे चेंज होती है, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंस आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो क्वालिटी। So, apart from loudness and pitch, there is another characteristic of sound known as quality or timbre. तो जैसे loudness और pitch उसी प्रकार एक दूसरा sound का characteristic है which is known as quality और timbre. ठीक है, तो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, म्यूजिकल साउंड का, जो हमें दो जो सेम नोट होते हैं उनके बीच में अंतर करना, अंतर को हमें पता लगाना सिखाता है। ठीक, हम जो उसके दो सेम नोट्स हैं उनके बीच में जो उनकी पिच और लाउडनेस है उनमें डिफरेंस समझ पाए, वही क्या कहलाता है, विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी हम समझ पाते हैं। ठीक है, quality or timbre expresses our ability to recognize the sound of a violin as a different from that of piano even when the instruments are playing with the same note with equal loudness। तो क्वालिटी जनरली क्या करता है कि मान लो वायलिन है, ठीक है, जैसे वायलिन का साउंड है तो सेम ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है लेकिन अलग अलग ट्यूनिंग हमें पता चल जाती है। जैसे जब मान लो गिटार बजाता है तो हम उसकी ट्यूनिंग से ही पता चल जाते हैं कि वो कौन सी टोन बज रही है। ठीक है, तो जनरली यही किस कारण से, क्वालिटी के कारण से। उसी प्रकार अलग अलग लोगों की आवाज हम सुन के ही पहचान जाते हैं बिना देखे, तो दैट इज फ्रॉम बिकॉज सबके साउंड की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। तो क्वालिटी जनरली वी कैन से दैट क्वालिटी हमें डिफ्रेंशिएट करना सिखाती है, क्वालिटी जो है हमें डिफ्रेंशिएट करना सिखाती है एक दूसरे की साउंड में। नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंडेड। तो साउंड जनरली दो प्रकार की होती हैं, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। सो व्हाट आर ऑडिबल साउंड, जिन साउंड्स को हमारा कान सुन सकता है वो ऑडिबल साउंड्स कहलाती हैं, और जिन साउंड्स को हमारा कान नहीं सुन सकता है वो इनऑडिबल साउंड्स कहलाती हैं। जनरली जो हमारे साउंड को सुनने की रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है। जो एक ह्यूमन ईयर का जो एक ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की
फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को, वेव्स को ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से यदि लो साउंड है तो नहीं सुन सकते हम, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड है तो हम नहीं सुन सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑडिबल और एंड इनऑडिबल। ठीक, नेक्स्ट इज ओके, सो वी कैन से दैट कि ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है वो ऑडिबल साउंड्स कहलाती हैं, और यदि इनके ऊपर की साउंड है मोर देन 20,000 और लेस देन 20 हर्ट्ज है तो वो साउंड इनऑडिबल कहलाती हैं। ठीक है, और ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी हियरिंग रेंज से नीचे होती है, ऐसी साउंड, कोई भी ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी हियरिंग रेंज जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, इसके नीचे होती है, वो साउंड इंफ्रासाउंड कहलाती है। और ऐसी साउंड जिनकी जो रेंज ऑफ हियरिंग है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेंज ऑफ हियरिंग से अबव होती है, मींस विच इज ग्रेटर देन 20,000, वो कहलाते हैं अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। ठीक, तो बिलो 20 हर्ट्ज की साउंड्स को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, एंड मोर देन 20 हर्ट्ज की साउंड्स को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जनरली इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड दोनों इनऑडिबल होते हैं, दोनों इनऑडिबल साउंड है। ठीक है, लेकिन इंफ्रासाउंड जो लेस देन 20 हर्ट्ज की साउंड्स है वो इंफ्रासाउंड्स कहलाती हैं, एंड मोर देन 20 हर्ट्ज की साउंड्स अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। ओके, so this fact also keep in your mind. Now similarly sound waves whose frequency lie above 20 hertz are called ultrasonic waves. तो उसी प्रकार ऐसी waves, ठीक, अभी तो ये साउंड्स के बारे में था, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। नाउ ऐसी वेव्स जो जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है, 20,000 से ज़्यादा होती है, उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और जिन वेव्स की फ्रिक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। नाम से 20 से नीचे हैं तो इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड। ओके, जनरली सो इंफ्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग पेंडुलम्स। इंफ्रासोनिक वेव्स को हम इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जनरली वाइब्रेटिंग पेंडुलम इतने स्लो होते हैं, क्योंकि ये ऑडिबल होते ही नहीं है। वेल्स, एलिफेंट और अर्थक्वेक के द्वारा इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, फिर एलिफेंट जनरली इंफ्रासोनिक वेव्स को ही यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और जो बाकी जानवर हैं जैसे कि मंकी, डियर, कैट, लेपर्ड्स, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी सुन सकते हैं। ठीक है, डॉल्फिन्स हैं जो 125 किलो हर्ट्ज मीन्स 1,25,000 हर्ट्ज तक की साउंड को भी सुन सकती हैं। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस अल्ट्रासाउंड्स हैव मैनी यूजेस इन इंडस्ट्री। अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेस भी हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स उनको स्कैन करने में, ठीक है, बिना उनको नुकसान पहुंचाए, तो इन सब में बहुत यूज है। अब लाओ लेट अस स्टडी वेरियस ऑडिबल रेंजेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ओके, सो हियर आर द animal name in one side and one side the range of audible frequencies ki how much an animal can hear. So a dog can hear from 20 hertz to 45,000 hertz, इतने के बीच की साउंड वेव्स को सुन सकता है। सिमिलरली कैट कैन हियर अप टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ 45 हर्ट्ज टू 85,000 हर्ट्ज। अ बैट कैन अप टू 12,000 हर्ट्ज, लो से लो साउंड भी, हाई से हाई साउंड भी। डॉल्फिन अप टू सॉरी 12,000 नहीं, 1,20,000। dolphin 2 lakh. Okay, and elephant 5 hertz to 10,000 hertz. So all these are the range of audible frequencies of different animals, so keep in mind. So that is why dogs को कहते हैं ना, इन जानवरों को सिक्स सेंस होता है, बिकॉज दे कैन हियर इवन लो एंड वेरी हाई साउंड्स ऑल्सो। इसी कारण से उनको बोलते हैं सिक्स सेंस, उनका सिक्स सेंस यही होता है। ठीक है, कि उनकी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज की रेंज है वो ह्यूमन से कहीं ज़्यादा होती है। वेरी लो साउंड्स को भी वो सुन सकते हैं और वेरी हाई साउंड्स को भी वो सुन सकते हैं जो ह्यूमन नहीं सुन पाते हैं, इसलिए इनकी सेंसेशन ज़्यादा मानी जाती है। ओके, नाउ नॉइज एंड म्यूजिक, लेट अस स्टडी डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। तो ऑडिबल साउंड्स
जो हमारे ईयर को प्लेजर दें, ऐसी ऑडिबल साउंड जो हमारे ईयर को प्लेजर दें वो म्यूजिक कहलाती हैं, और ऐसी ऑडिबल साउंड्स जो हमारे नॉइस को हमारे ईयर्स को परेशान करें, हमारे ईयर्स के लिए पेनफुल हो, ठीक है, हार्मफुल हो, वो क्या कहलाता है, नॉइस कहलाता है। जैसे कि जितने ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फ्लूट, सितार, वायलिन, ये सब क्या है, म्यूजिक है, ठीक है, क्योंकि ये हमें सुनने में बहुत शांति देते हैं, पसंद आते हैं, वी लव देम टू लिसन। और जैसे कि डीजे की साउंड हो गई, ठीक है, ट्रैफिक की साउंड हो गई, ये सारी साउंड्स क्या है, नॉइज है, क्योंकि ये हमारे ईयर को पेन करती हैं, ठीक है, हमें हार्म करती हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। समटाइम्स इवन लाउड म्यूजिक अपीयर्स अनप्लीजेंट, जैसे डीजे मैंने बताया, जब कभी हम लाउड म्यूजिक बजाते हैं तो वो भी क्या होता है, अनप्लीजेंट लगता है, इसलिए वो भी नॉइस बन जाता है, ठीक, डीजे भी क्या एक नॉइस का है, ठीक, क्योंकि वो हमारे लिए पेनफुल बन जाता है वो म्यूजिक। सो दिस वाज द noise and music. So now let us study about various musical instrument which produce sound. So first one is string instrument. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग को खींचने से साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, ठीक है। तो इनमें जो वाइब्रेशन है वो जो उनमें स्ट्रिंग लगी होती है, पतला सा तार लगा होता है, उसको जब हम वाइब्रेट करते हैं उससे साउंड जनरेट होती है, और फिर वो हमें म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है वो। सो दिस इज ऑल दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग आर नोन एज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जांपल है गिटार, ठीक। नेक्स्ट इज विंड इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें विंड के वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है वो विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, लाइक फ्लूट एक्सेट्रा, ट्रम्पेट, ये सब क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज रीड इंस्ट्रूमेंट। तो जिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हारमोनियम वगैरह या माउथ ऑर्गन, उनमें रीड की सहायता से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। रीड क्या है, एक स्ट्रिप ऑफ मेटल है जो उस इंस्ट्रूमेंट पे लगी होती है, जैसे हारमोनियम में जब उसको कहते हैं स्ट्रिप ऑफ मेटल क्या होती है, उसी के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी प्रकार जो माउथ ऑर्गन होता है जिसको मुंह में लेके हम लोग बजाते हैं, तो उसमें भी एक स्ट्रिप मेटल लगी होती है, तो जब उससे हमारी जो एयर वेव्स हैं वो टकराती हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो all these are different types of instrument. Now percussion और membrane instrument. So ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस अ म्यूजिकल साउंड, जिनमें एक कोई एक वाइब्रेटिंग स्किन टाइप में लगी होती है या मेम्ब्रेन, ठीक है, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि तबला हो गया, ढोलक हो गया, इनमें क्या होती है, जो वो जो तबले में जो ऊपर एक वाइब्रेटिंग स्किन या जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं वो लगी होती है, जब उस पे हम बजाते हैं या ढोलक को जब हम बजाते हैं तो उसी इस मेम्ब्रेन पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तभी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये परकशन और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं जिनमें मेम्ब्रेन की सहायता से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज घना वाद्य। सो व्हाट इज घना वाद्य, जैसे कि जिनको आपस में टकराने से जो आवाज आती है, ठीक है, किसी चीज से हिट करने से आवाज आती है, वो क्या होते हैं, घना वाद्य कहलाते हैं। जैसे कि मजीरा हो गया, जल तरंग हो गया, मटका, मटपॉट, ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको इस जिनमें साउंड किससे आती है, आपस व्हेन वी स्ट्रक समथिंग ऑन देम। ओके, नाउ मेजरमेंट ऑफ नॉइस। सो नॉइस को भी हम डेसिबल में ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो द जीरो ऑन अ डेसिबल स्केल इज द लोवेस्ट साउंड प्रेशर दैट कैन बी हर्ड। तो जो डेसिबल एक स्केल होती है उसमें जो जीरो लिखा होता है यूनिट, जीरो यूनिट का मतलब है वो सबसे लोवेस्ट साउंड है, मीन्स 20 हर्ट्ज, जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। और इसी जो जीरो है उसी को हम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, कि वो सबसे लोवेस्ट साउंड है जिसको हम हमारा ईयर सुन सकता है, सेंस कर सकता है। तो 20 dB इज द मेजरमेंट ऑफ विस्पर। जब हम एक कुछ चीज आपस में फुसफुसाते हैं, किसी के कान में कुछ कहते हैं, तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो 20 dB होती है, ठीक। और उसी प्रकार एक जैसे कोई शांत ऑफिस है तो वहां पे यदि नॉइज हो रही है, थोड़ा सा भी किसी ने शोर किया, तो वो 40 dB होती है, ठीक। उसके बाद नॉर्मल कन्वर्सेशन, जब दो व्यक्ति आपस में नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हैं, तो उनकी जो मेजरमेंट होता है साउंड का वो 60 डेसिबल होता है। और उसी प्रकार एंड 80 डेसिबल इज द लेवल एट विच साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल। और 80 डेसिबल वो लेवल है जहाँ पे साउंड हमारे कानों पे फिर चुभने लगती है, और उससे ज़्यादा की साउंड तो और भी ज़्यादा चुभती है। सो दिस इज अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड एंड देयर मेजरमेंट्स। ओके।
नाउ नॉइस पोल्यूशन. सो व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? तो जनरली यही जो अनवांटेड साउंड है, ठीक, पेनफुल साउंड है, जब ये नेजर में फैलती हैं, एटमॉस्फेयर में फैलती हैं, तो ये क्या कहला करा करती हैं, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. सो जनरली वी कैन डिफाइन नॉइस पोल्यूशन एज द पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द साउंड और साउंड वेव्स इज नोन एज नॉइस पोल्यूशन. ठीक है. जनरली जो हाई पिच्ड नॉइसेस होती हैं, ठीक है, ये नॉइस पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी हैं. ये कभी कभी इनके बहुत सारे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. हम अपनी हियरिंग सेंसेशन, हियरिंग कैपेसिटी लॉस्ट कर सकते हैं. ठीक, हम इरिटेट हो सकते हैं, ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. ठीक, हमें थकावट लगेगा, हमारा कंसेंट्रे हम अपना लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इस टाइप की इस बीमारियां हमें हो सकती हैं. हमारे ईयर्स भी खराब हो सकते हैं. सो जब कोई साउंड वेव्स ये सारी चीज़ें करने की क्षमता रखें, ठीक, हमें तकलीफ दें, वो नॉइस पोल्यूशन कहलाता है. ओके. But if it is very loud, it results in sickness एंड टेम्परेरी डेफनेस. जब ये कोई साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होती है तो उससे हम जरूर बीमार हो जाते हैं, या कुछ समय के लिए बहरे हो जाते हैं, डेफनेस आ जाती है. ठीक है. और जब कभी अचानक से कभी कोई मान लो तेज साउंड आती है, जैसे बिजली कड़कती है, तो हम डर जाते हैं. ठीक है. वो कभी ज़्यादा डैमेज अक्सर करती है. ठीक है. तो जो आजकल जो नॉइस पॉल्यूटर हैं, जो नॉइस को पॉल्यूट करते हैं, जो नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं, वो है जैसे कि एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन है, जाती कितनी तेज साउंड करती है, रोड का जो ट्रैफिक है, ठीक है, बहुत तेज जो म्यूजिक बजाया जाता है डीजे वगैरह में, फायर क्रैकर्स, ठीक, और बाकी जो घर के और मशीनरी से रिलेटेड अप्लियांसेस हैं, जैसे कि आटा चक्की वगैरह हो गई, और जितनी भी मशीनरी हैं, ये सब क्या करती हैं, हाईली नॉइस प्रोड्यूस करती हैं. नाउ लेट अस स्टडी various measure to control noise pollution. How can we control noise pollution? Okay. So let us study various method through which we can control noise. First one is using sound insulating materials in home such as carpet and curtain. Double glazed windows also help to reduce noise. तो जो अपने घर में जो साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, जो साउंड को आगे मतलब साउंड को पास नहीं होने देते अपने थ्रू, जैसे कि कारपेट हो गया, कर्टेन्स हो गया, या डबल ग्लेज्ड विंडोज, जिससे कि अंदर कम से कम नॉइस आ पाए. इस तरह से हम साउंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. प्लांटिंग मोर ट्रीज बिटवीन रोड एंड होम्स एज ट्रीज आर द नेचुरल बैरियर फॉर नॉइस. अपने घरों के आसपास पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ जो है नेचुरल बैरियर है साउंड का. साउंड वेव्स उनसे टकरा के उनका एम्पलीट्यूड लो हो जाता है और फिर वो नॉइस कम करती हैं. तो इस तरह से भी हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट, लोकेटिंग नॉइस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स अवे फ्रॉम द रेसिडेंटल एरियाज. जो नॉइस प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको जो रेसिडेंटल एरियाज हैं उनसे दूर कर दिया जाए, ताकि जो रेसिडेंटल एरियाज में वो साउंड प्रोड्यूस ना हो. ठीक है. ओके. विद ऑल दीज थिंग्स we can minimize the noise pollution. Okay, so in this way our chapter gets completed. Hope you all understood various facts related to the sound. Okay, if you have any doubt regarding this chapter, you can mention your doubt in our comment section and we will provide you with the solution. Thank you everyone. Goodbye. Take care.